A very good afternoon, everyone. I hope all of you are doing good. I am Sumita Panigre. On behalf of the Holy Tuition family, I welcome you all to today's class. I'm teaching you Science Class 9 and we are reading Chapter 9 Force and Laws of Motion. Okay, so we are reading the Chapter 9. This is the fourth part. I have already completed three parts. So if you are new to the channel, do like, share, and subscribe. And you may go to the playlist, check it out if it's your first video. Okay, so before starting the class, let me remind you that eTuition is providing quality education for your better tomorrow. So don't forget to subscribe our YouTube channel or download the app from the Play Store. Okay, so without wasting any further time, let's see what we're going to discuss today in the fourth part. Today we are going to discuss NCERT solutions. ठीक है, तो ये चैप्टर खत्म हो चुका है. It's a very interesting. At the same time, it's a short chapter. Okay, so the first chapter we discussed in the first part we discussed what is force. In the second part we discussed first and second laws of motion, and in the third part we discussed third law of motion. ठीक है, तो अभी जो है चैप्टर खत्म होता है, तो मेरे को कौन बताएगा कि what is first law of motion? Tell me what is the first law of motion? Newton has given three laws of motion, right? So Sir Isaac Newton's first law of motion states that. Who will be telling what is the first law of motion of Newton? Newton stated that an object will remain in rest or motion until and unless an external force is applied. तो जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं अप्लाई होता तब तक जो है एक पर्टिकुलर चीज़ अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, मोशन में है तो मोशन में रहेगा. So that is the first law of motion. Now what is the second law of Newton's motion? That is फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन. ठीक है, मास इंटू एक्सेलरेशन का डेफिनेशन फोर्स भी होता है. जब भी हम फोर्स कोई भी चीज़ में लगाते हैं तो जिस उस चीज़ का कुछ मास होता है और हम कुछ एक्सेलरेशन अप्लाई करते हैं, तो दैट इज एफ इज इक्वल टू एम ए. ओके, एंड व्हाट इज द थर्ड लॉ ऑफ मोशन? एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन. हम जो भी एक्शन करते हैं उसका सेम इक्वल और ऑपोजिट रिएक्शन हम पे भी होता है. फॉर एग्जाम्पल इफ़ आई एम थ्रोइंग अ बॉल, तो मैं क्या कर रही हूँ, मैं कुछ एनर्जी से बॉल को थ्रो कर रही हूँ, तो उसी एनर्जी से मेरे हाथ को भी एक फोर्स महसूस होगा. ठीक है, अगर मैं कोई एनर्जी से अपना एक बॉल थोड़ी दूरी पे भेज रही हूँ, ठीक है, तो मैं कुछ फोर्स से फेंक रही हूँ. अब मुझे उसी फोर्स का ऑपोजिट और सेम जो है, ठीक है, रिएक्शन मिलेगा. ठीक है, सो व्हाट इज द थर्ड लॉ ऑफ मोशन? दैट एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन. उसको जितना मैंने फोर्स दिया अपने आप में अपने हाथ में भी उतना फोर्स मेरे को महसूस होगा. दैट इज द थर्ड लॉ ऑफ मोशन. So these are the three laws of motion that Newton has given. Okay, so today we'll be continuing and finally wrapping this chapter with some NCERT selected questions. Okay, not all the questions but some selected questions. All right, let's start. The first is, don't look at the answer, just look at the question and answer yourself. Okay, why do you fall the it's important for you to just see the question, not the answer. So don't look at the answer. Why do you fall in the forward direction when a moving bus brake to a stop and fall backwards when it accelerates? आप सब जो है बस में एक बार ज़रूर गए होंगे. ठीक है, तो बस में क्या होता है, जब हम बस में बैठे रहते हैं, जब गाड़ी चल रही होती है, ठीक है, हम होते हैं एकदम से पे, जैसे ही ब्रेक लगाता है ड्राइवर हम थोड़ा आगे हो जाते हैं, ऐसे ऐसे होके रुकते हैं. राइट, हम ऐसे धक्का मार के आगे की तरफ से क्यों रुकते हैं बताओ? और जब भी हम ऐसा होता है कि मतलब बहुत ज़्यादा स्पीड गाड़ी फिर चलने लगता है अचानक से, तो हम पीछे हो जाते हैं. सो व्हाट इज़ द रीज़न कि जब जैसे ही ड्राइवर ब्रेक लगाता है हम ऐसे आगे हो जाते हैं और जैसे ही ज़ोर की गाड़ी भगाने लगता है हम पीछे की ओर धक्का मारते हैं. व्हाट इज़ द रीज़न, ऐसा क्यों होता है, कोई मेरे को बता सकता है? फर्स्ट, हम अगर सपोज चल रहे हैं, हमारी गाड़ी एकदम चल रही है सही स्पीड में, अचानक से उसने ब्रेक लगाया, हम आगे हो जा रहे हैं. ये क्यों हो रहा है? फर्स्ट ये इसलिए हो रहा है कि जब तक गाड़ी चल रही है हम उसी स्पीड में, हमारा बॉडी जो है उसी स्पीड में, हम भले बैठे हुए हैं गाड़ी के अंदर, हम मतलब हमें पता नहीं चल रहा है, लेकिन हम भी जो है गाड़ी की स्पीड के साथ मूव कर रहे हैं. ठीक है, तो हम भी मूवमेंट कर रहे हैं, तो हम भी आए गाड़ी की स्पीड के साथ, हमारी बॉडी भी मूवमेंट कर रही है. जैसे अचानक से ड्राइवर ने ब्रेक लगाया तो क्या हुआ, हमारी जो चलती हुई हमारा जो बॉडी मूवमेंट में था, अचानक से जैसे ही ब्रेक लगाया हमारा बॉडी भी रेस्ट में आ गया. ठीक है, जिसकी वजह से हमारा अपर पार्ट जो है, ठीक है, हमारा लोअर पार्ट जो है वो जो है ब्रेक मारने की वजह से ब्रेक लग गया, लेकिन हमारा अपर पार्ट अभी भी मोशन में कुछ सेकंड के लिए था, बिकॉज ऑफ विच उसने जैसे ब्रेक मारा अभी भी वो था, इसी वजह से हम आगे हो गए.
समझ गए? रीड करते हैं। द बस इज मूविंग अ बॉडी ऑल्सो इन मोशन। ठीक है, तो बस जब चलता है हमारी बॉडी भी मोशन में, बट ड्यू टू सडन ब्रेक्स द लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी कम्स टू रेस्ट एज सून एज द बस स्टॉप्स। पर जैसे ही ब्रेक लगाया हमारा लोअर बॉडी जो है वो मूवमेंट कर रहा था, वो अचानक से रुक गया, लेकिन हमारा अपर बॉडी तभी भी कंटिन्यू था मोशन में। सो जैसे हम इनर्शिया की वजह से आगे झुक जाते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट अब जब झुक गए तब अचानक से क्या हुआ, गाड़ी स्पीड में चलने लगी तो हम पीछे हो गए। अब क्यों पीछे हो गए? ठीक है, सेम रीज़न अगेन। जब हम स्टेशनरी थे, मतलब बस रुका हुआ था, हमारा बॉडी भी लेफ्ट में था। जैसे ही क्या हुआ, जैसे ही गाड़ी चलने लगी, हमारा जो लोअर पार्ट है वो अचानक से कांटेक्ट विद द फ्लोर आया और वो भी मोशन में आ गया। ठीक है, लेकिन अपर बॉडी अभी भी रेस्ट में था, तो वो इनर्शिया के ऑफ रेस्ट की वजह से पीछे चला गया। सो देयर आर टू टर्म्स, फर्स्ट इज इनर्शिया ऑफ रेस्ट एंड इनर्शिया ऑफ मोशन। तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से क्या हुआ, इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से हमारा जो बॉडी का मूवमेंट था, अपर बॉडी वो पीछे हो गया, और इनर्शिया मोशन की वजह से जो हुआ, हमारा अपर बॉडी जब ब्रेक्स लगाया गया तो आगे हो गया। सो दीज आर सम एग्जांपल्स यू हैव टू रिमेंबर। ओके, सो दैट इज द रीजन व्हाई वी फॉल forward direction when the moving bus breaks to a stop and fall backwards when it accelerates from left. Got it? ये समझ में आया तो अगेन आप वीडियो को देख लेना रिवाइंड करके, तो समझ आ जाएगा। इट्स अ वेरी इजी वन। ओके, नेक्स्ट read the question again. Explain why is it difficult for a fireman to hold a hose which ejects a large amount of water at high velocity. कभी देखा है आग लगते हुए, टीवी पे देखा होगा, ठीक है, या फिर कहीं आसपास में आग लगी होगी तो फायर एक्सटिंग्विशर वाले आते हैं, वो क्या करते हैं, वो एकदम से एक होस लेकर आते हैं, जिससे कि होस इज अ पाइप, जो पाइप होता है एक्सटिंग्विशिंग पाइप निकालते हैं, उस पाइप का एक ओपनिंग रहता है, दैट इज कॉल्ड अ होस। ओके, वहाँ से बहुत ही स्पीड में जो होता है, बहुत हाई वेलोसिटी में वाटर निकलता है, जिससे कि हमारा जो होता है फायर वो एक्सटिंग्विश हो जाता है, राइट। लेकिन जो फायरमैन उसको पकड़ा रहता है, वो उसके लिए मैनेज करना वो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है उस बंदे के लिए, जो भी होता है, मतलब वो पर्टिकुलर पाइप पकड़ना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो एक बंदा पाइप नहीं पकड़ता, उसके साथ साथ पीछे और 2 3 4 लोग होते हैं जो कि उस पाइप को पकड़े रहते हैं, क्योंकि वो जो होता है बहुत हाई वेलोसिटी में एकदम पानी निकलता है, तो एक बंदा उस होस को मैनेज नहीं कर पाता है। पर क्यों मैनेज नहीं करता, ऐसा क्या होता है, लेट्स सी। हमने यहाँ पे थर्ड लॉ ऑफ मोशन पढ़ा हुआ है, राइट। थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या बताता है, न्यूटन्स का थर्ड लॉ ऑफ मोशन, वो ये बताता है कि एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो जब भी क्या होता है, जब भी पानी बहुत हाई वेलोसिटी से बाहर आता है, तो क्या होता है, वो ज़रूर सामने वाले में मतलब फायर एक्सटिंग्विश कर दे रहा है, बट एट द सेम टाइम हमने पढ़ा है इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, तो उस पाइप के ऊपर भी बहुत ज़्यादा फोर्स उसी रेंज में आ रहा है, तो उसको मैनेज करना इट्स वेरी टफ। ओके, दिस इज द आंसर। What is the answer? The water that is ejected out from the hose in the forward direction comes out with a large momentum. And equal amount of momentum is developed in the hose in the opposite direction. जितना फोर्स में बाहर जा रहा है उतना फोर्स में महसूस भी होगा जो पकड़ा होगा, ठीक है, जो क्या करेंगे उसको पीछे धक्का मार रहे होंगे। So it becomes difficult for a fireman to hold a hose which experiences this large momentum. Okay. Next. What is next? If action is equal to the opposite reaction, explain. Explain how a horse can putt a cart. What is this? Can anybody tell me? What is this? So if an action, अगर हर एक एक्शन का एक इक्वल रिएक्शन है, तो हॉर्स कैन पुट अ कार्ट, तो इसका मतलब क्या है, देखते हैं। पुल अ कार्ट, ओके, हाउ अ फोर्स कैन पुल अ कार्ट, इट्स नॉट अ पुट अ कार्ट, बट मतलब ये गलत हो गया, टाइपिंग एरर है, ठीक है। हॉर्स पुल कर सकता है ना कार्ट को, तो हमें जैसे कि पता है कि सारा जो हमने पढ़ लिया थर्ड लॉ ऑफ मोशन की वजह से के ऊपर, कि जितना भी एक्शन है उसका एक इक्वल रिएक्शन होता है, तो वैसे इट्स अ पुल अ कार्ट। ओके, इट्स नॉट PULLE, वो एडिट हो गया, ठीक है, इट्स नॉट पड अ कार्ट, इट्स पुल अ कार्ट। तो अभी हमें पता है कि हॉर्स जो होता है वो तो अकेले ही खींचता है, कार्ट तो मतलब कोई खींचती नहीं है, तो पुल अ कार्ट कैसे हुआ, लेट्स सी। थर्ड लॉ ऑफ मोशन बताया कि एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। नाउ इस केस में क्या होता है, हॉर्स जो होता है एक फोर्स लगा के ग्राउंड से दम लगाकर अपने पैरों से जो होता है एक ये को अपने बल से काट को खींचता है चलते हुए, ठीक है। ग्राउंड जो होता है वो इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन अपने फीट जो होता है हॉर्स का उस पर भी एप्लीकेबल होता है, which enables a horse to move forward and the cart is pulled by the horse. कैसे? Read. In this case, the horse exerts a pressure on the ground with its feet
वाइल वॉकिंग, तो क्या करता है, फोर्स से खींचता है। द ग्राउंड एक्सर्ट्स इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, अब जो ग्राउंड होता है वो भी इक्वल ऑपोजिट रिएक्शन उसके फीट पे डालती है और ऐसा करके वो पुल कर पाता है। समझ गए? 4000, ओके, आंसर पीछे है। 40,000 kg इंजन पुल्स अ ट्रेन ऑफ 5 वैगन्स, ठीक है। 5 डिब्बी वाली एक ट्रेन है, ठीक है, उसको एक 40,000 kg का इंजन पुल कर रहा है। कितना डब्बा है हमारे ट्रेन में, 5 डिब्बे हैं। उस 5 डिब्बे को एक इंजन खींचता है। कार इंजन को कौन, ये ट्रेन को कौन खींचता है, इंजन चलाता है ना। तो इंजन के पीछे 5 डिब्बे वाली ट्रेन, इंजन के पीछे 5 डिब्बे वाली ट्रेन है। वो इंजन कितने केजी का है, 40,000 kg का है, 40,000 kg। ईच ऑफ 2,000 kg along क्या, along हॉरिजॉन्टल ट्रैक, ओके। तो एक हॉरिजॉन्टल ट्रैक में 2000 kg ईच ऑफ 2000 मतलब 40,000 kg का इंजन है। और हमारा जो एक एक मतलब 5 वेगन वाली है, 5 डिब्बे वाली हमारी ट्रेन है, उस एक एक डिब्बे का भार कितना है, 2000 kg। तो 40,000 kg वाला कितना केजी का ये खींच रहा है, 2 5 जा 20,000 kg का जो है पीछे से भार खींच रहा है, ठीक है। इफ द इंजन एक्सर्ट्स अ फोर्स ऑफ 40,000 न्यूटन, अगर इंजन जो है 20,000 kg के ऊपर अगर 40,000 न्यूटन दे रहा है, तो एंड द ट्रैक ऑफर्स अ फ्रिक्शनल फोर्स ऑफ 5,000, कैलकुलेट करना है। लेट्स सी ये क्या है, दिस इज द आंसर। तो फर्स्ट थिंग, एक्सेलरेटिंग फोर्स हम कैलकुलेट करेंगे। इंजन कितना फोर्स अप्लाई कर रहा है, 40,000 न्यूटन। और फ्रिक्शनल फोर्स क्या हो रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स हमने पढ़ा है, जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है वो हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शन में एप्लीकेबल होता है। तो जब भी मैं ट्रेन आगे खींच रही हूँ, मैं 40,000 kg से न्यूटन से लगा के खींच रही हूँ, तो फ्रिक्शनल फोर्स ऑपोजिट है, अपोज कर रहा है, तो वो माइनस हो जाएगा। 35,000 न्यूटन में मैं अपना पूरा ट्रेन काट छाट के खींच पा रही हूँ, ठीक है। नाउ एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रेन क्या है, एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रेन भी सेम रहेगा। 40,000 न्यूटन से अगर मैं खींच रही हूँ, मेरा 5,000 मेरे को गिवन है फ्रिक्शनल फोर्स, उसको कैंसिल करने के बाद 35,000 न्यूटन से आई एम एक्सेलरेटिंग द ट्रेन। ओके, दिस इज द फोर्स, ओके, वी हैव कैलकुलेटेड। नेक्स्ट, मास ऑफ 5 वैगन्स पुल्ड बाय इंजन। अब मैं कितना कर रही हूँ, मैं जो है एक इंजन, मेरा जो एक मतलब पूरा ट्रेन है, मेरे ट्रेन में कितने डिब्बे हैं, मेरे ट्रेन में डिब्बे कितने हैं, 5 डिब्बे हैं। और एक डिब्बे का वेट है मेरा 2000 kg। तो मेरा टोटल वेट कितना हुआ, 10,000 kg, यानी मेरा 40,000 kg का जो इंजन है, इट वॉज पुलिंग 10,000 kg 5 वैगन्स और 5 वैगन्स, राइट। तो मेरा एक वेगन का अगर 2000 है तो 5 वेगन्स का 10,000 kg है, ठीक है। मेरे को पता है सेकेंड लॉ के हिसाब से फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। फोर्स गिवन है 35,000, उसके बाद मास है 10,000, एक्सेलरेशन निकालना है, डिवाइड कर दो, 3.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से खींचा जा रहा है। नेक्स्ट, द फोर्स ऑफ वेगन 1/2, ठीक है। अब फोर्स ऑन वेगन 1/2 कितना है, मुझे पता है एक एक का जो वेट है वो 2000 है, यानी टोटल का है 10,000, ठीक है। अब मुझे क्या पता है, फोर्स ऑन 1/2, मेरे को एक वेगन का भार कितना है, एक वेगन को अगर मैं छोड़ दूँ तो बाकी 4 का अगर मैं लूँगी तो 2000 इंटू 4 यानी 8,000, राइट। तो मेरा फोर्स अगेन गिवन, फोर्स खींचना है मेरे को फोर्स बताना है, तो मेरे को मास पता चल गया पीछे 4 का, मतलब 4 और डिब्बे का, एक डिब्बे का 2, तो यानी कि 4 डिब्बे का 8,000। और एक्सेलरेशन निकल गया 3.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी टोटल फोर्स ऑन वेगन 1 वाज 28,000 न्यूटन। ओके, नेक्स्ट, ओके, ऑलराइट, ये पढ़ ली। नेक्स्ट, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास, एन ऑब्जेक्ट an object of mass 100 kg is accelerated uniformly from a velocity of 5 meter per second to 8 meter per second and 6 second. Calculate the initial and final momentum of the object. Also find the magnitude of the force exerted on the object. Let's see. मास गिवन है, क्या क्या गिवन है पहले फाइंड आउट करो। मास गिवन है ऑब्जेक्ट का 100 kg, 100 kg, ठीक है। वेलोसिटी गिवन है, इनिशियल वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड, फाइनल वेलोसिटी गिवन है 8 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट, उसके बाद टाइम गिवन है 6 सेकेंड, ठीक है। मेरे को क्या निकालना है, इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम, यानी P1 और P2 निकालना है। और मेरे को फोर्स भी निकालना है। हमें पता है, हमें क्या पता है, हमें पता है फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, यानी मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। मास है 100 kg, कांस्टेंट रहेगा। उसके बाद फिर बोला है कि, उसके बाद क्या बोला है, ओके, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे पहले हम लोग इनिशियल मोमेंटम निकालेंगे, फिर फाइनल मोमेंटम। तो इनिशियल मोमेंटम निकलेगा, मास 100 के 100 kg है, और उसका जो है
यू कितना है 5, तो 500 kg मीटर स्क्वायर। वैसे ही फाइनल मोमेंटम निकालेंगे 100 इंटू 8, 800। उसके बाद फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। मास है 100, एक्सेलरेशन कितना है, यू माइनस एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है वेलोसिटी बाय टाइम, यानी मेरा इनिशियल फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी माइनस करेंगे गिवन टाइम में, दैट इज 3/6 कट के हो गया 50 न्यूटन। Very easy. Okay, how much momentum will be a dumbbell of mass 10 kg transferred to the floor if it falls into height of 80 centimeter? Take it downward. Okay. So mass एक डम्बल है 10 kg को गिरता है 80 मीटर की हाइट से। 80 सेंटीमीटर को 0.8 मीटर में कन्वर्ट करो। एक्सेलरेशन है 10 मीटर पर स्क्वायर और पहले इनिशियल वेलोसिटी 0। हमें पता है, हम पढ़ चुके हैं वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। यूज़ करेंगे, वी स्क्वायर हमें पता नहीं है, यू स्क्वायर था 0 स्क्वायर इज इक्वल टू 2 दिया है, एक्सेलरेशन दिया है 10 और हमारा 0.8 इसका हाइट है। बस उससे निकल गया v, उसके बाद p 0 टाइम इंटू v। ठीक है, ओवर। So I hope that your concepts are clear. This is the concluding part of the chapter, force and laws of motion. From the next class onwards, we'll be starting a new chapter. So do not forget to be present, okay? And if you are missing this class, just go and watch it out later, which is available in the playlist. Okay, so with that hope, I'm signing off. I hope that you're doing good, and I'll be seeing you guys next in the next session. Until then, have a good day and keep smiling. Bye.